ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آپ کو آغاز میں سب سے پہلے بتائیں کہ مونسون کی موسلا دھار بارشوں نے بلوچستان میں ہر جانب تباہی مچا دی۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا کر رکھ دی۔ ہلاکتوں کی تعداد 120 تک پہنچ گئی۔ جاں بحق افراد میں 46 مرد، 32 خواتین اور 42 بچے شامل ہیں۔ بارشوں سے بلوچستان میں 50,000 افراد براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ 10,000 کے قریب مکانات منہدم ہو گئے۔ کوئٹہ کراچی نیشنل ہائی وے سمیت 640 کلومیٹر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مونسون کی بارشوں نے بلوچستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہلاکتوں کی تعداد 120 تک پہنچ گئی۔ جاں بحق افراد میں 46 مرد، 32 خواتین اور 42 بچے شامل ہیں۔ بارشوں سے بلوچستان میں 50,000 افراد براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ 10,000 کے قریب مکانات منہدم ہو گئے۔ کوئٹہ کراچی نیشنل ہائی وے سمیت 640 کلومیٹر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے بلوچستان کے کئی علاقوں کو ڈبو دیا۔ بپھرا ہوا پانی مسلم باغ کے تعلیمی اداروں اور عدالتی کمپلیکس تک پہنچ گیا۔ کان مہترزئی میں 50 سے زائد بجلی کے کھمبے تنکوں کی طرح بہہ گئے، جبکہ دال بدین میں سیلابی ریلیں ریلوے ٹریک اپنے ساتھ بہا کر لے گئے۔ پاک ایران ریلوے سروس معطل ہو گئی۔ کوئٹہ زیارت شاہراہ بھی آمد و رفت کے لیے معطل ہو گئی۔ طوفانی بارش اور سیلابی ریلوں نے بلوچستان کے کئی علاقوں کو ڈبو دیا۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ بپھرا ہوا پانی مسلم باغ کے تعلیمی اداروں اور عدالتی کمپلیکس تک پہنچ گیا۔ کان مہترزئی میں 50 سے زائد بجلی کے کھمبے تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ دال بدین میں سیلابی ریلیں ریلوے ٹریک اپنے ساتھ بہا کر لے گئے۔ پاک ایران ریلوے سروس معطل۔ کوئٹہ زیارت شاہراہ بھی آمد و رفت کے لیے معطل ہو گئی۔ اور اسی سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں پر بریفنگ۔ بارش اور سیلاب سے متاثر ہونے والے گھروں کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ جن کا گھر مکمل طور پر تباہ ہوا ہے انہیں 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جن کے گھر کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے انہیں 2 لاکھ روپے تک فراہم کیے جائیں گے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کے وزیر اعظم کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں پر بریفنگ۔ بارش اور سیلاب سے متاثر ہونے والے گھروں کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ جن کا گھر مکمل طور پر تباہ ہوا ہے انہیں 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جن کے گھر کو جزوی نقصان پہنچا ہے انہیں 2 لاکھ روپے تک فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا منچھر اور سجاول کا دورہ۔ 500 سے زائد بارش متاثرین میں راشن تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سیلاب متاثرین سے ان کے مسائل سنے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بارش سے متاثرہ لوگوں کی ضرور امداد کریں گے، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا منچھر اور سجاول کا دورہ۔
500 से जायद बारिश मुतासरीन में राशन तकसीम किए। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन से उनके मसाइल सुने। मुराद अली शाह कहते हैं कि बारिश से मुतासरा लोगों को इमदाद देंगे। ये भी कहा कि किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए हम तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कराची में बारिश के बाद सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई। जमात इस्लामी मसाइल के हल के लिए कोशा हो गई। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बारिश के बाद गटर खुले हुए हैं, शहरी बुरी तरह अजियत का शिकार हैं। टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ियों के साथ इंसानों की हड्डियों का भी सत्यानाश हो रहा है। हुकूमत सड़कों की अस्तरकारी के काम हंगामी बुनियादों पर करे। कराची में मानसून की बारिशों के बाद सूरत हाल गंभीर। जमात इस्लामी मसाइल के हल के लिए कोशा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बारिश के बाद गटर खुले हुए हैं, शहरी बुरी तरह अजियत का शिकार हैं। टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ियों के साथ इंसानों की हड्डियों का भी सत्यानाश हो रहा है। हुकूमत सड़कों की अस्तरकारी के काम हंगामी बुनियादों पर करे। कराची दारा नूरुल हक में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और दीगर संगीन मसाइल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बताया कि बारिश के बाद गटर खुले हुए हैं, शहरी बुरी तरह अजियत का शिकार हैं। टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ियों के साथ इंसानों की हड्डियों का सत्यानाश हो रहा है। हुकूमत इमरजेंसी की सूरत हाल में सड़कों की सरकारी कराए। इतनी टूटी हुई सड़कों में जो गाड़ियों का हाल है, लोगों की रीढ़ की हड्डियां और उनके जो है वो इस वक्त आर्ज़े लायक हो रहे हैं, खासतौर पर खवातीन जिनको अगर सफर करना पड़े और फिर आपने ट्रांसपोर्ट कौन सी दस्तयाब की हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि KCR शुरू कराने के लिए तमाम सियासी जमातें झूठ बोल रही हैं। रेल की पटरियां उखड़ी हुई हैं, जबकि इस मद में हमारे से भारी टैक्स वसूल किया जा रहा है। जो आप बर्बाद करते हैं हमारे, इसी तरह इस सर्कुलर रेलवे के ऊपर स्टेशनों पे भी काम नहीं हुआ और जो इसके इर्द गिर्द की आबादियों को ठीक करना था वो भी काम नहीं हुआ। फिर जो मजबूरी सर्कुलर। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि 1-2 दिन में हम कॉल दे रहे हैं, जब तक अवाम सड़कों पर नहीं आएंगे काम नहीं बनेगा। जमात इस्लामी की तहरीक का नया मरहला तय कर लिया है। अवाम को शहर के हक के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। मानसून की मूसलाधार बारिशों ने शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ऐसे में इंतजामिया सड़कों से गायब। कराची में तूफानी बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सड़कों की टूट फूट ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। जा बजा तबाही के मनाजिर दिखाई देते हैं। बड़े बड़े गड्ढे हादसात का बाइस बनने लगे। कार सवार हो या फिर मोटरसाइकिल सवार, सभी हुकूमत और बल्दियाती इदारों को दुहाइयां देने लगे हैं। बारिशों ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। कराची में तूफानी बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो बर्बाद हो गया। सड़कों की टूट फूट ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। जा बजा तबाही के मनाजिर हैं। बड़े बड़े गड्ढे हादसात का बाइस बनने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। शुजात कुरैशी बताएगा इस वक्त शहर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों की क्या हालत है। जी बिल्कुल, देखें बारिशें तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो असरात हैं बारिश के बाद जो सूरत हाल है शहर कराची की, कराची इस वक्त जो है खंडर का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह सड़कें जो हैं, कहीं पर कीचड़ है तो कहीं खड्डे हैं। खड्डों की वजह से हादसा मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। लोगों की कमर में और मोहरों में दर्द उठने लगा है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर का इलाका है गरीबाबाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक है जो कि हुसैनाबाद से गरीबाबाद जा रहा है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही है। एक रक्षा है वो खराब हो चुका है, धंस चुका है, तो रक्षा ड्राइवर जो है उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से जो फुटपाथ जो कि पैदल चलने वालों का हक होती है, वहाँ पे जो है मोटरसाइकिल सवार जो है गुजर रहे हैं, क्योंकि वो भी मजबूर है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ पे खड्डा है और कहाँ पर नहीं हो, अगर खड्डा है भी तो कितना गहरा है। इस सड़क बंद होने की वजह से जो है ये सड़क जो है 2 वे हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कराची शहर की इस वक्त ऐसी कोई सड़क नहीं है जो कि बिल्कुल स्मूथ हो। जगह जगह पे खड्डे हैं, हर जगह सूरत हाल खराब है। कीचड़ इस कदर है कि
वहाँ लोग ताफुन उठने लगा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। दोपहर में मक्खियाँ और रात में मच्छर होते हैं। शहरी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। सिंध हुकूमत को जो है दुहाइयाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं घर दफातर से निकलो, ठंडे कमरों से बाहर निकलो, ताकि शहर की हालत देखो। जो अफसरान हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और विजिट करके चले जाते हैं, लेकिन उन्हें उन मोटरसाइकिल सवार हजरात का दर्द नहीं है, ना ही रिक्शा सवार हजरात का दर्द है, क्योंकि उनकी गाड़ियां तो बड़ी बड़ी होती हैं, वो छोटी मोटी जंप्स को जो है सह लेती हैं, बड़े बड़े खड्डों को सह लेती हैं, लेकिन जो परेशानी मोटरसाइकिल सवार हजरात को होती है वो उससे आगाह नहीं है। तो आवाम का यही मुतालबा है कि वो बाहर निकलें और ख़ुद देखें आकर के किस तरह की सूरत हाल है। मेन शाहराहों पे गुजर के चले जाते हैं, जो गली मोहल्ले हैं वो अभी भी जो है खंडर का मंजर पेश करें। जगह जगह पानी जमा है, कीचड़ जमा है, बहुत बुरी हालत है। शहरी इस वक्त बहुत अजियत का शिकार हो चुके हैं। जी, सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुजात कुरैशी। सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया के नाकस मटीरियल ने शहर कराची की सड़कों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। कराची में होने वाली बारिशों ने सड़कों की तामीर के मयार की कलई खोल दी। बारिशों के बाद सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे शहर कराची के शहरियों का मुकद्दर बन चुके हैं। न्यू कराची, सुरजानी और नॉर्थ कराची की सड़कें अरबाब इख्तियार की तवज्जो की मुंतजिर हैं। गाड़ियों में सवार लाखों शहरी उछलते कूदते गिरते पड़ते सफर करने पर मजबूर हो गए हैं। मंगोपी रोड भी कराची की तबाहाल सड़कों में से एक है। औरंगी टाउन, कस्बा और बनारस में सड़कों का नाम निशान नहीं रहा। 3 माह कबल मोहसिन भोपाली अंडरपास की बनने वाली सड़क भी करप्शन की नजर हो गए। इंतजामिया के नाकिस मटेरियल ने कराची को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, बताइएगा कि इंतजामिया इस वक्त कहां है, सड़कों की हालत अबतर है? जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में देख रहे हैं हम मुख्तलिफ मकामात, सड़कें हों, गलियों, मोहल्ले हों या घर के आगे हों, वहाँ पर गंदा पानी और कीचड़ जो है लोगों के लिए परेशानी जिस कदर पैदा कर रही है। अवाम इंतहाई जो है हम देख रहे हैं कि उनके लिए जीना महाल हो गया है। जैसा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ PCHS जैसे इलाके के अंदर भी जो है पानी का ये हाल है कि कैमरामैन तारिक अगर दिखाए तो ये देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ से निकल नहीं सकते। सड़क बंद हो गई है इस सीवरेज के गंदे पानी की वजह से, जो कि बारिश का पानी, बारिश के बाद ये गटर में पानी गया, गटर के बाद जो है हमने देखा कि वो गटर का पानी बजाय इसके कि बारिश के पानी की निकासी होती, जो सीवरेज का गंदा पानी था वो भी जो है गटरों से बाहर आ गया है। ये हालत हो गई है, लोगों के दरवाजे जो है बंद हो गए हैं और घर से नहीं निकल सकते हैं। ऐसी हालत जब इन इलाकों की होगी तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इलाके जो कि कच्ची आबादी पर मुश्तमिल होते हैं या लांडी, कोरंगी, मलिर, सुरजानी टाउन, नई कराची, यूसुफ गोड, इस किस्म के इलाकों में अगर औरंगी टाउन के जहाँ मकानात, जहाँ गलियाँ नीचे होती हैं, वहाँ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। तो अब शहर कराची का कोई इलाका महफूज नहीं रहा है इस गंदगी के हवाले से, सीवरेज के पानी के हवाले से या टूटी फूटी सड़कों के हवाले से। खवा वो डिफेंस हो, PCHS जैसा इलाका हो या फिर लांडी, औरंगी, कोरंगी, मलिर, सुरजानी टाउन, नई कराची जैसे इलाके हों, तो शहर कराची के अवाम जो है यही रोना रोते हैं कि टैक्सेस के मद में जो हम तमाम चीज़ों पर टैक्स देते हैं, लेकिन जो है ये ख़जाना खाली कैसे हो जाता है। वो ख़जाना, वो फ़ंड जो कि कराची की तरक्याती कामों के लिए जारी किए जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? शहर कराची का तरक्याती काम भी जो है हमने देखा कि इस बारिश के पानी में बह गया है, क्योंकि जो सड़कें बनाई गई थी, जो पेच पर किया गया था, वो भी जो उसने नाकिस काम की जो है कलई खोल दी इन बारिशों ने, कि वो भी बह गया है। और शहर की वो सड़कें जहाँ गड़े पड़े हुए हैं उसकी वजह यही है। बाज़ जगह पेच वर्किंग जो की गई थी, ना सिर्फ ये कि वो सड़कें बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि बसों से बनी ही नहीं है, बल्कि गड़े ऐसे पड़े हुए हैं कि वहाँ से मोटरसाइकिल सवार गुजरते हैं तो अक्सर गिर पड़ते हैं। तो ट्रैफिक की रवानी भी जो है शहर कराची के में जो मुतासिर हो रही है, जो ट्रैफिक जाम की वजह बन रही है, उसकी बड़ी वजह यही है कि टूटी फूटी सड़कें, शहर की जो सड़कें खंडर बन गई हैं, खंडर पेश कर रही हैं। शहरी कहते हैं कि हमारी गाड़ियों की ख़राबी की असल वजह ये टूटी फूटी सड़कें हैं कि हमें शहर कराची के अंदर अब गाड़ियाँ चलाना
ना सिर्फ मुश्किल हो गया बल्कि अजरन हो गया है। ज़िंदगी इंतहाई अजरन हो गई है। और हम शहर कराची के अंदर जब भी घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो कहना यही होता है कि हमें 1 घंटे पहले निकलना पड़ता है वक्त से, ताकि उसका ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गटर खुले हुए हों या गड़े हों, उनसे बचकर किस तरह निकलते हैं तो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल में फंस भी जाते हैं। तो शहर कराची के लोग अब जैसे कि फिर पेशन गोई अगर बारिश के हवाले से हो रही हैं तो इस परेशानी से दो चार नज़र आते हैं कि बारिश का पानी तो एक तरफ ये सीवरेज का गंदा पानी जो है सड़कों और गलियों में आ जाता है, जो कि कहीं हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी यानी कि मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। परेशानी से 2-4 अवाम है तो उनका यही कहना है कि फिर बारिशें होती रहीं तो फिर हम इस परेशानी में घिर जाएंगे, क्योंकि अब बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ के मकानात में बताया जाता है कि घरों में पानी आने की वजह से जो उनका फर्नीचर ज़ाया हो गया है, उनके घर की आसाइशें तमाम ख़त्म होकर रह गई हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर यकीनन महंगाई के दौर के अंदर दोबारा जो है घर के लिए फर्नीचर या सहूलत की चीज़ें जो कि तबाह हो गई हैं दोबारा हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। तो शहर कराची के अवाम जो है मुतालबा करते नज़र आते हैं, अपील करते नज़र आते हैं कि खुदारा जो हुकूमत वफाक हो या सिंध हो, कराची के अवाम को इन मसाइल से निकालने के लिए जो है सिवाय बातों के अमली इक़दाम भी करके दिखाए, ताकि जो है अमली इक़दाम के ज़रिए जो है शहर कराची इन बरसों से जो ये चले आ रहे हैं मसाइल और परेशानी हाल का शिकार जिसकी वजह से होते हैं उनका खात्मा हो सके। जी, हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि शहर कराची की बेशतर अहम सड़कें बारिश के पानी से तबाह हो गई हैं। कराची के इलाके शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया। आई चंडीगढ़ रोड आने और जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने शगाफ के अतराफ रुकावटें खड़ी कर दी हैं। हसन स्क्वायर से स्टेडियम रोड जाने वाली शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी, जबकि स्टेडियम रोड फ्लाईओवर के एक ट्रैक को बंद कर दिया गया था। कराची के इलाके शाहीन कॉम्प्लेक्स से करीब सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया। कराची की बेशतर अहम सड़कें बारिश के पानी से तबाह बर्बाद हो गई, जबकि आई चंडीगढ़ रोड आने और जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने शगाफ के अतराफ अपनी मदद आप के तहत रुकावटें खड़ी कर दी। हसन स्क्वायर से स्टेडियम रोड जाने वाली शाहरा पर गाड़ियों की कतारें, स्टेडियम रोड फ्लाईओवर के एक ट्रैक को बंद कर दिया गया। शहर कराची की सड़कों पर सफर करना मुसाफिरों के लिए एक कड़ा इम्तहान बन गया। कराची में बारिश ने सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। अहम शहरों पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे पड़ गए। यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क के अतराफ सड़कों का बुरा हाल है। गुलशन इकबाल 13D में भी तबाहकारियां जारी हैं। मलीर, काला बोर्ड और कोरंगी में सड़कों का नामो निशान मिट गया। सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए कड़ा इम्तहान बन गया। गली और मोहल्लों में बारिश का पानी था हाल मौजूद। सीवरेज के पानी ने सूरत हाल को मजीद गंभीर कर दिया। मुतालिका महकमे के अफसरान सब अच्छा है कि रिपोर्ट देकर जांच छुड़ाने लगे, जबकि अवाम सड़कों पर रुल रहे हैं। कराची में बारिशों के बाद सड़कों की टूट फूट ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। कार सवार हो या मोटरसाइकिल वाले, सब ही हुकूमत और बल्दियाती इदारों को दुहाइयां दे रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे हादसात का बायस भी बन रहे हैं। शहर में तूफानी बारिश के बाद तबाही के मनाजिर जा बजा नुमाया नजर आ रहे हैं। हुकूमत से कौन खुश है भाई? कोई भी खुश नहीं है। ये तो गंदे लाशें वैसे पड़ी हुई हैं, सब कुछ वैसे का वैसे है। पानी है, बहुत ही पानी है। इतनी मोटरसाइकिलें खराब हो रही हैं। ये आवाम जितनी परेशान हो रही है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। शर्म करनी चाहिए ऐसे हुक्मरानों को। और एहतजाज और अपोजिशन में रहकर बड़ा रोल अदा करते हैं। जब ये पोजीशन में होते हैं, रूलिंग पार्टी में होते हैं, कुछ भी नहीं करते। शहरियों का कहना है कि कराची में बादल तो बारिश बरसाकर चले गए, लेकिन शहरियों के लिए मसाइल अभी तक कम ना हुए। बारिश के बाद सड़कों का बहुत बुरा हाल है। गड्ढे पड़े हुए हैं। जगह जगह पानी की वजह से बाइक पर आने जाने वालों को बहुत मसाइल है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए टूटी फूटी सड़क पर सफर करना चैलेंज बन गया है। शहरी हुकूमत को सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हैं। ये तो भाई बहुत बड़ी कंपनी से उन्होंने पीयूष पार्टी वालों ने बनवाया था, लेकिन पता नहीं अंदर क्या चूना लगाया है या चाक लगाई है। बस जरा पानी आया और ये घुल जाती है,
खड्डे पड़ जाते हैं, हालत देख लें। बहुत मसला है, नहीं आ सकता है बंदा। कल हम आते, कल तो यहाँ पर बाइक बंदी हुई थी, बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरना पड़ता है। रोड के जो मसाइल हैं वो इसकी वजह ये है कि जब ये रोडें बनती हैं तो इनकी सही तरीके से निगरानी नहीं की जाती, और जो कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, हुकूमत की तरफ से जो क्लाइंट है, हुकूमत रोड बनवा रही होती है, तीनों की नेग्लिजेंस की वजह से आवाम को परवाह नहीं है कि रोड जो बना रही है वो किस तरीके से बन रही है रोड। तूफानी बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। परेशान हाल शहरी कहते हैं, जो हुक्मरान आकर बैठे हैं उन्होंने कराची समेत मुल्क को खंडरात के दौर में धकेल दिया। आखिर इस तरह के मसाइल का मुस्तकिल और देरपा हल कब निकाला जाएगा? और अभी आपको बताएं कि बारिश की तबाहकारियों से न्यू सब्जी मंडी कचरा मंडी में तब्दील हो गई। कराची की न्यू सब्जी मंडी में बारिश के बाद तबाहकारियां जारी, मंडी कचरा मंडी बन गई है। कई कई फुट कीचड़ जमा है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। होलसेल फ्रूट वेजिटेबल मंडी में लाखों रुपए का माल पानी और कीचड़ की नजर हो गया। मंडी इंतजामिया की जानिब से गफलत और लापरवाही से ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। कराची की न्यू सब्जी मंडी में बारिश के बाद तबाहकारियां, न्यू सब्जी मंडी कचरा मंडी में तब्दील। कई कई फुट कीचड़ जमा, कचरे के ढेर लग गए। होलसेल फ्रूट और वेजिटेबल मंडी में लाखों रुपए का माल पानी और कीचड़ की नजर हो गया। मंडी इंतजामिया की जानिब से गफलत और लापरवाही से ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान। कराची की न्यू सब्जी मंडी में बारिश के बाद तबाहकारियां जारी, मंडी कचरा मंडी बन गई। कई कई फुट कीचड़ जमा, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। होलसेल फ्रूट वेजिटेबल मंडी में लाखों रुपए का माल पानी और कीचड़ की नजर हो गया। मंडी इंतजामिया की जानिब से गफलत और लापरवाही से ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शहर कायद में मॉनसून सीजन की बरसात को बिलाखिर ब्रेक लग गया। 10 अगस्त तक शहर में बारिशों का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, 10 अगस्त के बाद चौथा स्पेल शहर में बारिश बरसाएगा। कराची में तूफानी बारिशों के बाद बारिशों को बिलाखिर ब्रेक लग गया। कराची में बारिशों को ब्रेक लग गया। 10 अगस्त तक शहर में बारिशों का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह पेशगोई कर दी, 10 अगस्त के बाद चौथा स्पेल शहर में बारिश बरसाएगा। अरकान सिंध असम्बली सदाकत हुसैन और अली खुर्शीदी ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन के हमरा औरंगी जोन की तमाम इमारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का दौरा करके इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बल्दिया गरबी में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से अरकान सूबाई असम्बली सदाकत हुसैन और अली खुर्शीदी ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन के हमरा औरंगी जोन की तमाम इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का दौरा किया। इस मौके पर इमाम बारगाहों और जुलूसों के मुंतजमीन ने अपने मसाइल की निशानदही करवाई। अरकान असम्बली ने एडमिनिस्ट्रेटर के हमरा इमाम बारगाहों के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स और जुलूस की गुजरगाहों पर ट्रैक्टर के जरिए रोड को हमवार करने के कामों का मुआयना किया। अरकान असम्बली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के मौके पर इमाम बारगाहों के अतराफ और जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और तब्दीली के कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के साथ साथ सीवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी और तामीर और मुरम्मत के कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए इंतजामिया बल्दिया गरबी और दीगर तमाम यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों को काम बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। एडमिनिस्ट्रेटर ने इंतजामिया बल्दिया गरबी की जानिब से मुहर्रम उल हराम के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात के हवाले से बताया कि बल्दिया गरबी की हुदूद में मौजूद तमाम इमाम बारगाहों के अतराफ
صفائی ستھرائی اور جلوس کی گزرگاہوں پر اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ تعمیر و مرمت اور سیوریج سسٹم کی درستگی کے کام برق رفتاری سے جاری ہیں، جبکہ موقع پر موجود بلدیاتی افسران نے محرم الحرام کے حوالے سے جاری کاموں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ غربی کی حدود میں موجود تمام امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، کچرے کی منتقلی اور روشنی کی فراہمی کے انتظامات، جبکہ جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے افسران اور عملہ بھرپور جد و جہد میں مصروف عمل ہیں۔ محرم الحرام کے دوران امام بارگاہوں کے اطراف جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر بلدیاتی افسران، بلدیہ غربی میں متعین تمام یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے افسران کے ساتھ ساتھ اور امام بارگاہوں اور جلوسوں کے منتظمین بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طه سلیم نے کہا ہے کہ عاشورہ کے دوران ضلع وسطی میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ مجالس اعضاء اور جلوس کے راستوں پر صفائی ستھرائی، بارش کے پانی کی نکاسی اور رات کے وقت روشنی کے بہتر انتظامات کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کرے۔ ضلع وسطی کے مختلف زونز میں قائم مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف بلدیہ وسطی کی جانب سے مہیا کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طه سلیم نے منتظمین سے محرم کے دوران جلوس برآمد ہونے اور گزرگاہوں کے حوالے سے بھی تفصیلات حاصل کی۔ موقع پر موجود بلدیاتی افسران کو مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجالس اعضاء اور جلوس اعضاء کے راستوں پر صفائی ستھرائی، بارش کے پانی کی نکاسی اور رات کے وقت روشنی کے بہتر انتظامات کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کرے۔ اس موقع پر انہوں نے بارش کے سبب ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی مرمت کی بھی ہدایت کی۔ طه سلیم نے محرم کے دوران عزاداری اور دیگر دینی تقریبات کے انعقاد کے سلسلے میں انتظامات اور تفصیلات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ضلع وسطی میں قائم مختلف مساجد اور امام بارگاہوں کا دورہ کیا تاکہ عاشورہ محرم کے دوران ضلعی اور بلدیاتی انتظامیہ فرائض تفویض کر کے عزاداری اور جلوس اعضاء کے پرامن اور خوش اسلوبی سے انعقاد کو ممکن بنایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی سید محمد علی زیدی نے میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو اور دیگر کے ہمراہ محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی سید محمد علی زیدی نے میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو اور دیگر کے ہمراہ محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں کا دورہ کیا اور صفائی ستھرائی، روشنی، سیوریج، پیچ ورک کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سید محمد علی زیدی نے کہا کہ محرم الحرام کے موقع پر عزاداران کو سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کو بروئے کار لایا جائے۔ دورے کے موقع پر میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو کا کہنا تھا کہ بلدیہ کورنگی نے انتظامات کو بہتر سے بہتر بنانے کے حوالے سے حکمت عملی طے کر لی ہے اور عاشورہ تک افسران و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر کے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ تو دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران بلدیہ ملیر کی مختلف یونین کمیٹیوں میں منعقد ہونے والی مجالس، محافل اور نکالے جانے والے جلوس میں شریک عزاداران حسین کو ہر ممکنہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ہمارے کار منصبی کا حصہ ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے سعادت اور ہمارا نصب العین ہے۔ محرم الحرام میں بلدیاتی سہولیات کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال قربانیاں پیش کی، جس کی نظیر تک قیامت ممکن ہی نہیں۔ اہل بیت اطہار سے محبت
ایمان کا حصہ ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر نے موقع پر موجود متعلق افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کے ساتھ ساتھ سیوریج لائنوں کی مشینوں کے ذریعے ہنگامی بنیادوں پر صفائی مکمل کی جائے اور کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ امام بارگاہوں، مساجد، جلوس کی گزرگاہوں پر اسٹریٹ لائٹس نہیں لگائی جا سکی، وہاں پر فوری اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں اور اطراف کی شاہراہوں پر سویپنگ کو یقینی بناتے ہوئے کچرا کنڈیوں سے صبح و شام کچرا اٹھایا جائے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ شرقی فہیم خان نے کہا ہے کہ عزاداران حسین کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے متعلقہ محکمہ جات اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، محرم الحرام میں فرائض دینی فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، جبکہ کوشش کر رہے ہیں کہ عزاداران کو جلوس و مجالس میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ کی ہدایت پر میونسپل کمشنر فہیم خان کی سربراہی میں محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے انتظامات پر جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں بلدیاتی انتظامات کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں جلوس و مجالس کے منتظمین نے بھی شرکت کی اور انہیں مسائل کے ساتھ ہونے والے کاموں سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر فہیم خان نے کہا کہ محرم الحرام میں فرائض دینی فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، جبکہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عزاداران حسین کو جلوس و مجالس میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے متعلقہ محکمہ جات اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ جائزہ اجلاس منعقد کرنے کا مقصد بلدیاتی خدمات کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے، تاکہ جو کام ہمیں مزید کرنے ہیں انہیں متعلقہ محکمہ جات کی مدد سے سر انجام دلوایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ کے ساتھ مل کر وہ مسائل بھی حل کروانے کی کوشش میں مصروف ہیں جو دیگر اداروں سے متعلق ہیں، جبکہ ڈی ایم سیز کے دائرہ اختیار میں آنے والے بلدیاتی امور میں کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے جلوس و مجالس کے منتظمین کو یقین دہانی کروائی کہ بلدیاتی خدمات کی فراہمی میں ڈی ایم سیز کی جانب سے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں بھی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ نے کہا ہے کہ بلدیہ کماڑی میں رہائش پذیر عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بلدیاتی افسران باہمی مشاورت اور مربوط حکمت عملی سے فرائض کی انجام دہی کو یقینی بنائیں۔ تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے بلدیاتی افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ نے کہا کہ تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوتی ہے، جبکہ برسات کے دوران بھی تجاوزات کی وجہ سے برساتی پانی کی نکاسی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمید اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ اپنی حدود میں اہلیان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے مختلف سمت سے امور انجام دے رہے ہیں تاکہ دور جدید کی تمام سہولیات سے انہیں مستفید کریں۔ اس وقت پورے ضلع کونسل میں برق رفتاری سے ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں۔ ضلعی افسران سے ضلع کونسل میں جاری اور نئے آنے والے پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمید اللہ بلوچ نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر نور حسن چوکیو ضلع کونسل کی حدود سے منتخب ہونے والے نمائندوں کی تجاویز کو بھی ترقیاتی اسکیم میں شامل کر رہے ہیں، اس لیے جو کام بھی کیا جا رہا ہے وہ علاقے کی ضروریات اور عوامی خواہشات کی مطابقت سے مکمل ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ انجینئرنگ ونگ میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکیمز کی بھرپور مانیٹرنگ کر رہی ہے. اس عمل سے تکمیل کے مراحل میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر نتائج بے مثال آیا ہوتے ہیں. ایاز حمید اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ در حقیقت ضلع انتظامیہ عوام کی بھرپور ترجمانی کرتی ہے. اس وقت پورے ضلع کونسل میں برق رفتاری کے ساتھ ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں, وہ بھی بغیر کسی تشہیری عمل کے. بہت جلد ان کا آغاز ہونے والا ہے جو شہر کی ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہوگا. شہر کراچی کے علاقے اسکیم 33 غازی گوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکین. آپ کو بتائیں کہ علاقہ مکین راہ میں رکاوٹ بن گئے, علاقہ میدان جنگ میں تبدیل. مکینوں کا پولیس پر پتھراؤ اور فائرنگ, 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے جبکہ دونوں پولیس اہلکاروں کو قبضہ مافیا کی جانب سے براہ راست گولیاں ماری گئیں. پولیس کا موقف, پولیس کی شیلنگ اور فائرنگ سے 3 عورتوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے. کراچی کے علاقے اسکیم 33 غازی گوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن, علاقہ مکین آپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. علاقہ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا. مکینوں کا پولیس پر پتھراؤ اور فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی. دونوں پولیس اہلکاروں کو قبضہ مافیا کی جانب سے براہ راست گولیاں ماری گئیں. پولیس کا موقف سامنے آ گیا جبکہ پولیس کی شیلنگ اور فائرنگ سے 3 عورتوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے. کراچی کے علاقے اسکیم 33 غازی گوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن, علاقہ مکین آپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. علاقہ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا. مکینوں کا پولیس پر پتھراؤ اور فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی. دونوں پولیس اہلکاروں کو قبضہ مافیا کی جانب سے براہ راست گولیاں ماری گئی ہیں. پولیس نے موقف اپنا لیا ہے جبکہ چیف سیکرٹری کی جانب سے آج کے واقعے کا نوٹس لے لیا گیا ہے. کئی پولیس افسران کو معطل بھی کر دیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے ایک انکوائری بھی بٹھا دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ کراچی کا علاقہ اسکیم 33 غازی گوٹ جہاں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا, علاقہ مکین اس آپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے. علاقہ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا تھا جبکہ مکینوں نے پولیس پر پتھراؤ اور فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے جبکہ دونوں پولیس اہلکاروں کو قبضہ مافیا کی جانب سے براہ راست گولیاں ماری گئی تھی. یہ پولیس کا موقف تھا جبکہ پولیس کی شیلنگ اور فائرنگ سے 3 عورتوں سمیت 6 افراد بھی زخمی ہوئے تھے جبکہ اس تمام تر واقعے کا چیف سیکرٹری نے نوٹس لے لیا اور کئی افسران کو معطل کر دیا. اس حوالے سے انکوائری بھی بٹھا دی گئی ہے. کراچی کا علاقہ اسکیم 33 غازی گوٹ ہے جہاں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا. علاقہ مکین آپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے. علاقہ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا تھا. مکینوں نے پولیس پر پتھراؤ اور فائرنگ بھی کی تھی جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے جبکہ پولیس نے یہ موقف اپنایا تھا کہ دونوں پولیس اہلکاروں کو قبضہ مافیا کی جانب سے براہ راست گولیاں ماری گئیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ واٹر بورڈ کے اعلی افسران کی ملی بھگت سے کراچی کے علاقہ مبینہ ٹاؤن آپ کو بتائیں کہ واٹر ہائیڈرنٹ مافیا کے لیے جنت بن چکا ہے. کراچی کا علاقہ مبینہ ٹاؤن ہے جو واٹر ہائیڈرنٹ کے لیے جنت بن گیا ہے. کنٹری گارڈن کی دکانوں میں 2 غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ بن گئے ہیں. ابوالحسن اصفہانی عباس ٹاؤن اور اسکاؤٹ کالونی کا پانی چوری کر کے فروخت ہونے لگا ہے. یہ تمام تر کام واٹر بورڈ کے اعلیٰ افسران کی مرہون محنت ہو رہا ہے. واٹر بورڈ کے اعلیٰ افسران نے ہائیڈرنٹ مافیا کو کھلی چھوٹ دے ڈالی ہے جس پر ہائیڈرنٹ مافیا کے لیے مبینہ ٹاؤن کا علاقہ جنت بنا ہوا ہے. کنٹری گارڈن کی دکانوں میں 2 غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ بن گئے ہیں جبکہ ایکسین واٹر بورڈ نے کئی دنوں پہلے جو ہے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ میرے علاقے سے پانی چوری ہو رہا ہے. میں نے خط بھی لکھا, درخواست بھی دی, لیکن اعلیٰ حکام نے اس حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لیا. یہ تمام تر کام محکمہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے, ان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے. جبکہ کراچی کا علاقہ مبینہ ٹاؤن واٹر ہائیڈرنٹ مافیا کے لیے جنت بن چکا ہے. کنٹری گارڈن کی دکانوں میں 2 غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ بن گئے ہیں. ابوالحسن اصفہانی روڈ عباس ٹاؤن اور اسکاؤٹ کالونی کا پانی چوری کر کے فروخت ہونے لگا ہے جبکہ کھلے عام غیر قانونی
पानी वाटर बोर्ड के आला अफसरान की मिली भगत से फरोख्त हो रहा है, जिससे इलाका मकीन परेशान है। इलाके में मुकीम वाटर बोर्ड के एक्सीएन ने बारहा दरख्वास्त भी दी और जो है गुजारिश भी की वाटर बोर्ड की जानिब से कि मेरे इलाके से पानी चोरी हो रहा है, लेकिन आला अफसरान ने इसके खत के बावजूद भी जो है अपनी आंखें बंद रखी, क्योंकि उनकी मिली भगत से ये तमाम तर काम हो रहा है कि धंधा जो बढ़ता जा रहा है और पानी नलकों में नहीं आ रहा, लेकिन पानी जो है वो हाइड्रेंट माफिया के पास मौजूद है और महंगे दामों हाइड्रेंट माफिया पानी फरोख्त कर रहा है। सिंध हुकूमत के मातहत चलने वाला इदारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गफलत और लापरवाही से शहर कायद गंदगी और गलाजत के ढेर में तब्दील हो गया। पाक कॉलोनी, चमन, सिनेमा और अतराफ में भी कचरे के अंबार, गंदगी और गलाजत के बायस सड़क से गुजरना मुहाल हो गया, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट की संगीन गफलत का खुमियाजा कराची के बासी भुगतने पर मजबूर है। कराची के दीगर इलाकों की तरह आपको बताएं कि बेशतर इलाके जिसमें पाक कॉलोनी, चमन, सिनेमा और अतराफ में भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गफलत और लापरवाही से शहर कायद गंदगी और गलाजत का ढेर बन चुका है। पाक कॉलोनी, चमन, सिनेमा और अतराफ में भी कचरे के अंबार हैं। गंदगी और गलाजत के बायस सड़क से गुजरना मुहाल हो गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की संगीन गफलत का खुमियाजा कराची के बासी भुगतने पर मजबूर है। है बचाना तो होगा कचरे को ठिकाने लगाना। कराची के दीगर इलाकों की तरह पाक कॉलोनी, चमन, सिनेमा में भी कचरे के अंबार भयानक शक्ल इख्तियार कर गए। गंदगी और गलाजत के बायस मरकजी सड़क से गुजरने वाला हर शहरी न सिर्फ शदीद कर्ब में मुब्तला है, वहीं बद इंतजामी उमूर के सबब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। शहरियों ने कहा है कि इलाके से जल्द गंदगी और गलाजत के अंबार का खात्मा न किया गया तो जल्दी समेत दीगर मुहलिक अमराज फूटने का खदशा भी बढ़ जाएगा। इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर इलाके में सफाई मुहिम का आगाज करे और सफाई सुथराई के इक़दामात को यकीनी बनाकर अपने होने का सबूत दे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जिला वस्ती को कचरे का मरकज बना दिया है। जिला वस्ती की सड़कों और फुटपाथ पर जा बजा कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गरीबाबाद को लियाकताबाद से मिलाने वाली मरकजी सड़क पर भी कचरे के अंबार। नाज़माबाद गोल मार्केट के करीब नूर ईमान मस्जिद के सामने कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल से मुत्तसिल रेलवे फाटक पर पड़ा कचरा भी सड़क तक आ गया। गंदगी और गलाजत के अंबार वबाई अमराज के फैलाव का सबब बनने लगे। कराची में दिन ब दिन कचरे की बेकाबू सूरत हाल। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत महकमा सैनिटेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम। ये गरीबाबाद को लियाकताबाद से मिलाने वाली मरकजी सड़क है जो इंतजामिया की अदम तवज्जोही के सबब बदतरीन कचरे की लपेट में है। शहरी कहते हैं गंदगी और गलाजत के ढेर के बायस पूरा इलाका ताफुन में है। 2 साल से ये कचरा गुंडी आने वाले नमाजी परहेजी जोन से इधर से कोई जनाजा का गाड़ी इधर से निकलती है तो बाहर ये कचरा पड़ा होता है, सब गंदगी। कल भी जनाजा अंदर से आया। गली का पूरे इलाके का ये मेन चौक है, 11 गलियों का मेन चौक है ये जोन सा। इधर से कोई जनाजा की गाड़ी आगे खड़ी होती है तो इधर से उनको दुश्वारी पड़ती है। सबसे पहले तो ये कचरा है, इनकी 4 दीवारी होनी चाहिए। पैदल तो दरकिनारे, गाड़ियाँ भी बहुत ट्रैफिक जाम में आता है। ये देख रहे हैं आप मेन होल, ये मेन होल यहाँ पे एक मजदूर काम करता है, उसने अपनी हाथों से मेन होल को खुद खोला है और 3 दिन से मुसलसल कचरा निकाला है इस मेन होल में से। जब जाके पानी की रवानी हुई है, ये उस बेचारे की महरूम मेहनत है, कितनी मेहनत से उसने काम करा है। ये एक मेन होल है, ये कई सालों से बंद पड़ा हुआ, कचरा फंसा हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं है कि यहाँ से कचरा हटाया जाए, सफाई हो या ये कचरा यहाँ से उठे। कोई बंदा नहीं आ रहा है देखने के लिए। ये देख, इस पे लकड़ी लगाया हुआ है, ये लकड़ी का काम है, कहीं हुकूमत का खोलने का काम है। वो पैसे लेके बस खाली जेब में डालता, जेब भरता है हर आदमी अपना। कचरा तो इतना बहुत भी बड़ा हुआ है, वो लेने के लिए मैंने 3 दफा वहाँ पे कंप्लेन लिखा है, वो बंदा अभी तक भी नहीं आया कि मैं इसको खोलूँ। इतना कचरा खड़ा हुआ है, इतना दुकान काम धंधा है नहीं है ऊपर से।
कराची के जिला वस्ती समेत मुख्तलिफ अजला में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि इंतजामिया अपने कामों और कराची के आवाम के साथ मुखलिस नहीं है। लोग जिएं या मरें, उन्हें कोई सरोकार नहीं। और अभी आपको बताएं कि हब डैम पानी से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। ऐसे में कराची में पानी का बहरान मजीद संगीन हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोर्ड की लाइनों में पानी नायाब हो गया। न्यू कराची बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, मलीर, कोरंगी और औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से पानी की फराहमी बंद है। वाटर बोर्ड और हाइड्रेंट माफिया की मुबैना मिली भगत से पानी की फरोख्त का सिलसिला जारी है। कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोर्ड की लाइनों में पानी नायाब। न्यू कराची बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, मलीर, कोरंगी और औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से पानी की फराहमी बंद है। वाटर बोर्ड और हाइड्रेंट माफिया की मुबैना मिली भगत से पानी की फरोख्त का सिलसिला जारी। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए और कोई कार्रवाई अमल